Thank you so much for introducing us. बहुत अच्छा लगा to have somebody introduce us. It always is a great pleasure to be associated with you. और I'm very happy कि हमारे पास आज इतने सारे participants है who are looking at starting something new, who are looking at कुछ education sector हो, corporate sector हो, and especially counseling के जो industry है, जो रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है ना, विच हम आपको ये प्रेजेंटेशन में दिखाने वाले हैं कि आपने यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ पे आए हैं ये वेबिनार के लिए, ऑलरेडी शोज कि आपका इनिशिएटिव है, आपका आप ये देख रहे हो कि व्हाट कैन आई डू विद माय रिसोर्सेज, विद माय सेल्फ, एंड ये बहुत अच्छी बात है दैट आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू. जैसा फर्स्ट स्लाइड जो है यहाँ पे पीपीटी पे देख रहे हो, future leaders in that way, right? I think so that is what you all are, so a very warm welcome to this webinar. Anytime during this webinar अगर आपके कोई भी questions हो, I would request you कि आप हमें हमारे जो chat box है उसमें आप लिख सकते हैं, ताकि at the end of the session or maybe in the midway of the session हम लोग आपके जो questions है वो हम लोग आपको आपके लिए answer करके दे सकते हैं. So warm welcome to all of you all, and I'd like to introduce the whole company of Brain Wonders. So Brain Wonders is India's सबसे largest career counseling company है, and we work right from preschools से लेके corporate से लेके school से लेके हर एक industry में हम लोग एक difference लेके आ सकते हैं. So in short, we will also be showing you कि कोई भी age group हो anywhere, we would be able to help you get connected to them, and it's going to be a wonderful business and a great business to take up in that way. So DMI Brain Wonders जो है, it's something that we had started way back in 2011, right? जो concept है DMIT का, obviously हम लोग आपको presentation में समझाने वाले हैं, but 2011 is जब हम लोग ने शुरू की थी. We were the first company. We are a US patented company जो DMIT का test है हमारा. So in 2011 is when we began. Steadily by 2011. 2013 is when we began almost 11 odd centers pan India. Obviously अगर आज के figures में आपको बताऊं तो हमारे 108 center है pan India, alright, and close to 450 plus institutes के साथ हमारा tie up है, educational institutes अगर हम लोग कहें. And दूसरी जो चीज़ है is we are connected to close to 90 plus corporate houses as well. तो आप schools ले लो, colleges ले लो, प्री schools ले लो, corporate houses ले लो, जो भी आप institute देखते हो कि जो भी जैसे आपको बताया आपका age group हो, you would be able to make a big difference in that way. So that has been the journey that we have seen. 2015 में हम लोग ने school और corporate system को शुरू की थी, जो आजकल सब कुछ digital है, right? And it is so important कि हम लोग वो progress हमारे clients को दे. So 2019 is when we 2018-2019 rather is when we began everything as an online process as well. So we have been able to connect digitally to anybody and everybody in India and across the world in that way. So digital platform पे हम लोग ने शुरू की थी. We were able to get into connecting to people even through the online process. Obviously वो सबसे अच्छी बात थी because obviously अभी COVID के वजह से we maybe physically are restricted in that way, but because already हम लोग ने वो digital through हम लोग ने connect कर दिया, it is a lot more easier at this present moment. So even at this present moment हम लोग ने इतने सारे connect किए हैं, whether it be school, college connect or whether it be corporate connect, we have still been able to do very well in the business front. And 2020 में like you see over there is हम लोग ने जो हमारा ऐप है, जो हम लोग का जो मैं DMIT के बारे में आपको बताने वाला हूँ, we also launched an online app. मतलब कहीं पे भी that is the beauty about digital जो चीज़ है कि हम लोग ने कहीं पे भी आप जाके you can connect to people, you can make the money in that way. तो कोई भी restrictions नहीं है, target audience का restriction नहीं है, there is no restrictions absolutely in this whole growth process. So like I said, at this present moment हम लोग का 108 centers है इंडिया में. We have 7 international franchisees as well, close to around 450 plus educational institutes और 90 plus हमारा corporate institutes के साथ connect है in that way. So that has been, if I would say, the journey जो हम लोग ने 2011 में शुरू की थी up to today, which is to 2020 in that way. So this is something that we would want to talk to you about.
अभी सबसे बेसिक चीज जो हम लोग करते हैं, लाइक यू सेड वी आर इंडिया, लाइक आई सेड वी आर इंडियाज लार्जेस्ट करियर काउंसलिंग कंपनी इन दैट वे, राइट। तो सबसे मेन चीज जो होती है काउंसलिंग में, इस पहले हमें जो सामने बैठा है उसको समझना है, और उसके बाद हम लोग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ना। वेरी बेसिक एस्पेक्ट, अगर आप कभी भी आप किसी को कंसल्ट करते हो, की बात करते हो, आप हमेशा जानते हो कि उनका साइड ऑफ द स्टोरी क्या होती है, कि उनका क्या एबिलिटीज की होती है, और उसके बाद आप उनको रिकमेंडेशन देते हो, राइट। वो जो चीज हम लोग कहते हैं उसको हम लोग असेसमेंट बोलते हैं, राइट। तो हम लोग जो सामने हमारे बेटे हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग अगर आप स्टार्टिंग से अगर आप देखो कि बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जहाँ पे हम लोग किसी को समझ सकते हैं। एक तो ट्रायल एंड एरर वाला मेथड रहता है, जहाँ पे आप किसी को ऑब्जर्व करते हो कि चलो इनका, मैंने इनको ऑब्जर्व किया लास्ट के 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कि 5 मिनट में, और हम लोग ने ये डिसीजन करते हैं कि चलो इनको शायद से ये डिसीजन लेना कि वो डिसीजन लेना है। इंटरव्यू करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, और सबसे आखिर वाला आप वहाँ पे देखोगे साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो क्वेश्चन आंसर्स वाले टेस्ट होते हैं इन दैट वे, जहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर करते हैं, और फिर रिपोर्ट आती है, और फिर काउंसलिंग होती है इन दैट वे। तो अलग अलग तरीके होते हैं ये किसी को समझने में, एंड किसी को रिकमेंडेशन देना कि कंसल्टिंग करना है इन दैट वे, राइट। अभी इनका प्रॉब्लम क्या होती है कि ये चीज को हम लोग थोड़ा जो सामने वाला रहता है, हम लोग को मालूम नहीं कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो मैनिपुलेट कर सकता है। लॉन्ग टर्म में हम उनको रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, उनको सिर्फ करंट सिनेरियो में हम लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जो काउंसलिंग कर रहे हैं उनका बायस होता है कि जो भी बोल रहा है वो उनके तरीके से वो समझेगा इन दैट वे। तो बहुत सारे ये दिक्कत होती है कि जब हम लोग ऐसे टाइप के असेसमेंट करते हैं, और असेसमेंट सब लोग देखते हैं। 2 साल के बच्चे की मम्मी जो होती है, जो ये देखना चाहती है कि वो अपने बच्चे को कौन से एक्टिविटीज, कौन सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस के लिए रख सकती है। 8, 9, 10 के बच्चे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन, करियर गाइडेंस के लिए देखते रहते हैं। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं कि कौन से जॉब्स, कौन से इंडस्ट्रीज हमें देखना है। कॉर्पोरेट हाउसेस भी में भी अगर आप देखते हो, एचआर की जो रोल होती है, राइट, जो कैंडिडेट आता है वो सही कैंडिडेट है, कि अगर कोई नया प्रोजेक्ट हमें शुरू करना है, तो वो नया प्रोजेक्ट के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उसमें से किसको हमें चुने, कि लीडरशिप किसको दे, कम्युनिकेशन किसको दे, मार्केटिंग किसको दे। तो वैसे हमेशा वो क्वेश्चन हमेशा रहता है इन एनीथिंग इन दैट वे। तो इसका सोल्यूशन हमें जेनेटिक इंटेलिजेंस से हमें मिलता है। अभी जेनेटिक इंटेलिजेंस क्या होता है, ऑलराइट। जेनेटिक इंटेलिजेंस इज बेसिकली नेचर, जो हम लोग का हमेशा वो क्वेश्चन होता है, राइट, नेचर या नर्चर। नेचर मतलब जो हमारे नेचुरल एबिलिटी होती है, नेचुरल पोटेंशियल जो होती है। नर्चर जो होती है कि हमें कैसे एनवायरनमेंट में डाला जाता है, हमारे पेरेंट्स कैसे है, उनका कौन से स्कूल में भेज सकते हैं, कौन से कॉलेज में भेज सकते हैं। तो नर्चरिंग वो होती है, राइट, एंड नेचर वो होता है। तो बेसिकली अगर आप जेनेटिक टेस्ट करते हो, अगर आप नीचे की लाइन देखते हो, हम इनका पोटेंशियल भी समझ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट भी समझ सकते हैं, उनको सही तरीके से एक्सपोजर भी अगर हम लोग देते हैं, देन यू नो दैट यू आर इन द राइट पाथ। तो हमें दोनों नेचर और नर्चर दोनों को हमें साथ में लेना है इन दैट वे। तो वो बहुत क्रूशियल होती है। तो ये जो जेनेटिक टेस्ट होती है ये DMIT होती है। Now, DMIT stands for Dermatoglyphic Multiple Intelligence Test, alright? इसका मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, बट बेसिकली ये जो टेस्ट जो होती है, इससे हमें सारे चीज पता चलता है। ब्रेन डोमिनेंस पता चलता है, लर्निंग स्टाइल पता चलता है, गाइडेंस पता, उनको गाइडेंस रिकमेंडेशन देते हैं, पर्सनालिटी पता चलता है। सो दैट इज समथिंग दैट जो सबसे क्रूशियल होती है। तो उनका प्रोसेस कैसा होता है, DMIT का प्रोसेस क्या होता है? तो 3 स्टेप का प्रोसीजर होता है। इसमें पहला जो प्रोसीजर होता है, हम लोग को बायोमेट्रिक स्कैन्स लेने पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट्स के स्कैन लेने पड़ते हैं। कभी आप एक डिवाइस पे ले सकते हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग का ऑनलाइन भी अभी ऐप है, जहाँ पे आप वर्चुअली भी और डिजिटली भी आप किसी के फिंगरप्रिंट के स्कैन ले सकते हो। फिंगरप्रिंट्स ऑब्वियसली हर एक जन का यूनिक होता है, जेनेटिक कोडिंग होती है उसमें। तो इस तरीके से जब हम लोग फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, और हमारा जो वेल्जिन साइंस लैब है मलेशिया में, वहाँ पे जब हम लोग बेचते हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वहाँ पे जो बेटे, वो आपके फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में हमें ये बताया जाता है कि जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में बताया कि उनके जो पर्सनालिटी है, एबिलिटी है, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, पेरेंटिंग हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, सारे चीज के बारे में हम लोग उनका हम लोग वो रिपोर्ट पे समझते हैं। अभी रिपोर्ट ही नहीं, रिपोर्ट के साथ साथ हम लोग काउंसलिंग, प्रोफेशनल काउंसलिंग भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो रिपोर्ट जो होती है उसके बाद एक काउंसलिंग सेशन होती है। तो 3 स्टेप का प्रोसीजर होता है, जैसे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे। फिंगरप्रिंट के स्कैन होते हैं, US पेटेंट के रिपोर्ट जो आती है जब हम लोग स्कैन बेचते हैं, जो हमारा वेल्जिन साइंस लैब है मलेशिया में। और उसके बाद तीसरा जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम लोग
प्रोफेशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं इन दैट, राइट। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली वी लाइक टू टेल यू अबाउट समथिंग एल्स जो हम लोग फ्लो में गए, बट दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट जो हम लोग का DMIT का रहता है, विच हैज बीन एबल टू गेट अस दैट मच रेवेन्यू। जो मैंने आपको बताया ना, जो हम लोग का स्कूल का कनेक्ट है, कॉर्पोरेट का कनेक्ट है, वो सारी चीज में हम आपको ये होती है। So with no further ado, I would like to introduce Mr. Manish Naidu. Mr. Manish Naidu जो हमारे CEO and founder है Brain Wonders के, right? And obviously he has this vast experience जो है, जो आपके साथ definitely वो share करना चाहेंगे। But this is the vast experience and the process जो मैंने आपको maybe in a very technical way में समझाया, he will be able to connect to you and tell you कि how has been the journey. And obviously, he would like to share his own experience with you. So, Mr. Manish Naidu, CEO and founder of Brain Wonders, if I could invite you to address our very kind audience over here. Manish sir, on your mute. Yes, sir. Thanks, Joshua. You have been wonderful. Thanks. And Namaste, Shashikal. For all our participants, partners, friends, पहले तो मैं दिल से ये दुआ देता हूँ कि all your family members and everybody should be protected along with yourself and safe रहिए, secured रहिए, लेकिन invest करते रहिए. So that's how I would want to start. If you can just stop the screen share for a moment so that I could see people. बचपन से it has been very difficult speaking to a blank screen. तो अगर आप लोग अपने अपने वीडियोस को अगर ऑन कर सकते हो 2-5 मिनट के लिए, तो it will be all the more sense. इससे थोड़ा और प्रोत्साहन मुझे मिलता है. Dear participants, request to you all please on your videos. So Mr. Manish Naidu. हाँ, तो ऐसे लग रहा है कि आई एम टॉकिंग टू सम लाइव ऑडियंस. नहीं तो वो जो से टीचर बच्चों को सिखाती है, पता नहीं चलता है कि वो लोग काम कर रहे हैं भी कि नहीं. सो इट्स इन दैट पर्टिकुलर वे. आई वुड रिक्वेस्ट द अदर्स आल्सो टू स्टार्ट ऑन. तो हमने काफी सारे पीपीटी स्लाइड्स बनाए हैं जो कि हम आपको बता देंगे ओवर अ प्रोसेस और पीरियड ऑफ टाइम. But I'll just give you a 5 minutes brief about what we are. मुझे पता है कि आप लोग ने बहुत सारा वेबिनार देखा होगा, आप लोग ने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए होंगे. जनरली इस दौरान ये लास्ट के 6 महीने में पैंडेमिक ने हमें काफ़ी कुछ सिखा दिया है. इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग राइट, इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग व्हाट इट हैज़ टू डू. तो सिमिलरली ऐसा ही कोई कुछ काम ना मेरे साथ 2008-9 में हुआ था. तो तब हम आईटी सेक्टर में थे. तो वी यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ लैपटॉप्स. आप लोग अगर वीडियोस ऑन करोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा. मुझे ऐसे लगेगा कि यू आर ऑल लिसनिंग टू मी. अदरवाइज आई कुड ओनली रिक्वेस्ट वन. सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें. हाँ, थोड़ा हंसता हुआ चेहरा लगेगा तो मुझे भी लगेगा कि मैं बोर नहीं कर रहा हूँ. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, सो बेसिकली 2009 तक हम आईटी सेक्टर में थे. हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में थे जहाँ पे मेरे 5-6 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ करता था. बट इट वाज जस्ट क्या कहते हैं उसको, बॉक्स मूविंग जो कहते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो मॉडल होता है वो मॉडल्स पे था. एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ माई चाइल्ड इन 2009 तब मैं निकला प्री स्कूल खोजने कि कौन सा प्री स्कूल सही रहेगा या कौन सा स्कूल मेरे बच्चे के लिए सही रहेगा. तो उस वक्त में मैंने कम से कम 50 से 60 सेंटर्स चेक किए. तब मुझे पता चला कि आइडेंटिफाइंग माय चाइल्ड और नोइंग अबाउट हर पोटेंशियल और नोइंग अबाउट हर स्ट्रेंथ्स, नोइंग अबाउट हर वीकनेसेस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये एक पिताजी की फर्स्ट टाइम फादर की जिज्ञासा थी कि मैं आगे क्या करूं, विच लेड मी टू डू व्हाटएवर आई एम डूइंग इट. तो तब कोइंसिडेंटली मैं तब एक आसूस का लैपटॉप बेचता करता था. वो ये सोनी बायो जो है, करीना कपूर की जो एड्स आती थी पहले, उसका लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर था वो ये मैन्युफैक्चरर थे. तो उनका हमने डिस्ट्रीब्यूशन था. तो उनका टाइवानीज बेस्ड कंपनी थी. सो आई हैड गॉन टू टाइवान एंड ही मेड मी मीट प्रोफेसर लिन. तो प्रोफेसर लिन जो ताइवान के प्रोफेसर थे, ही इज अ जेनेटिक इंजीनियर. तो उन्होंने अलॉन्ग विथ हिज टीम ऑफ जेनेटिक पीपल, एम्ब्रोलॉजिस्ट, उन्होंने ऐसा एक आविष्कार किया जहाँ पे बायोमेट्रिक स्कैन्स, फिंगरप्रिंट्स के बेसिस पे
आपके सोशल इंटेलिजेंस है उसका किया उन्होंने, 12 साल तक उन्होंने फिंगरप्रिंट्स चेक किया। तो फिंगरप्रिंट्स आर नेवर कनेक्टेड टू द ब्रेन। फिंगरप्रिंट्स के अंदर जो भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, जैसे आप बाल डीएनए या आप स्वैब देते हो जो जो कहते हैं, ये सब चीजों को लेके भी आपकी जेनेटिक इंटेलिजेंस पता चलता है। अमेरिका जैसे देशों में ऐसा भी किया है कि जहाँ पे बैडली म्यूटिलेटेड जो बॉडीज होते हैं, जहाँ पे आपके बॉडीज का डिस्फिगरिंग हो जाता है, उसमें भी ये पता चल जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट्स कि वो कहाँ से था और क्या था और कहाँ से आया। सो फिंगरप्रिंट जेनेटिक इंटेलिजेंस इज बीन वेरी वेरी साइंटिफिकली प्रूवन। तो 2011 में हमने ये 16 तक तो हम जो भी आ रहे थे पैसे देने के लिए हम ले रहे थे, बिकॉज इट वाज अ ग्रोइंग मार्केट एंड वी आल्सो वांटेड मनी। to be some credibility involved with the franchisees who come in. तो 2016 फ्रेंचाइजीज देना बंद कर दिया और हम स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम में जा चुके थे। तो हमने काफी सारे अवार्ड शोज, काफी सारे B2B मीटिंग्स कनेक्ट किया। तो लास्ट के 3 सालों में हमने कम स्पेंड ओनली ऑन स्कूल कनेक्ट। तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास 300 स्कूल्स के ऐसे डेटाबेस हैं जो हमारे साथ रोज काम करते हैं। So that is what we are doing in. And so स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम तो हमारे पास था ही। फिर हम लोग ने यूनिवर्सिटीज को कनेक्ट करना शुरू कर दिया, फिर कॉलेजेस को क्रिएट करना शुरू कर दिया, फिर हमने प्री स्कूल जो ECA करके एक बहुत बड़ी संस्था है, अर्ली चाइल्ड केयर, ये प्री स्कूल्स वाले जो हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा, बट उनके साथ उन्होंने हमें एक्रेडिटेशन देना शुरू कर दिया। तो ECA से लेके MISA से लेके तो जितने भी पेरेंटिंग और स्कूल एसोसिएशंस थे उन्होंने हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब इतने सारे डेटाबेस के साथ में फिर हम फ्रेंचाइजी वापस हमने शुरू किया। तो फ्रेंचाइजी जब शुरू किया तो प्रोफेसर लिन ने कहा कि भाई अब इंग्लिश तो हमें आता नहीं है, तो जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है वहां पे आप प्रोग्रेस करना शुरू करो। तो हमारी फर्स्ट फ्रेंचाइजी जिम्बाब्वे में हुई, फिर साउथ अफ्रीका में हुई, फिर श्रीलंका में हुई, अब हम UAE में कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ वी ग्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना, अगर आपको ये समझना है कि मैं DMIT क्यों करूं, तो सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा। पहले हम ये समझ में आना चाहिए कि हम एजुकेशन सेक्टर में क्यों जाएं। अभी हमें एजुकेशन सेक्टर में इसलिए जाना है बिकॉज एजुकेशन इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। आपने और हमने जितने में हमने हमारा स्टडीज किया उससे कहीं ज्यादा पैसा अब है। तो A, इट इज अ रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री। B, मेरा बच्चा क्या करेगा या मेरा बच्चा आगे जाके क्या करेगा, ये सवाल पहले भी था, आज भी और कल भी रहेगा। सो दिस क्वेश्चंस विल कीप ऑन कमिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ एवरग्रीन इंडस्ट्री। ये दोनों बहुत ही क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। अब आप बायजूस देख लो, आप व्हाइट हैट जूनियर देख लो, आप वेदांतु देख लो, आप यूने अकेडमी देख लो, आप जितने भी भारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी अगर आप मॉड्यूल के साथ में जुड़ते हो तो आप सिर्फ फ्रेंचाइजी पर पैसा नहीं खर्चा कर रहे हो, आप कंपनी के साथ जुड़ रहे हो। और कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनी में जब भी सीड फंडिंग आएगी, कंपनी में जब भी ऐसा एक एडुटेक का इंडस्ट्री में जो माहौल जो बदल रहा है उसमें जब भी इन्वेस्टमेंट आएगा तब जो वो सबका कॉस्टिंग हजारों गुना बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में जिसने भी जियो में अगर 1 रुपया लगाया, एस्पेक्ट हैज ग्रोन एटलीस्ट 4000 टाइम्स। तो आपको इंडस्ट्री में रहने के साथ में आप ये मत देखो कि मैं इतना पैसे डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, वो तो आपको मिलना ही है। आप ये देखो कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने वाली ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा कंपनी है जिसके साथ अगर हम जुड़े तो वो कंपनी हमारे आप उनके एम्प्लॉइज को ही नहीं लेकिन उनके फ्रेंचाइजीज को भी साथ में ले जाता है। आप लोग जो 35-40 जन जो हो आज हमारे साथ जो बात रहे हैं या स्टिल लो, जहां पे द कंपनी इज ऑल्सो टू मेक यू ए पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर व्हेन इट गेट्स इन्वेस्टमेंट। आज की तारीख में हमारी वैल्यूएशन समझो 80 करोड़ रुपए की है। जब वो 800 करोड़ या 1000 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचेंगे तब आपका जो पर्टिकुलर मॉड्यूल होगा या आपकी जो एरिया टेरिटरी का जो कॉस्टिंग होगा दैट विल ऑल्सो एक्सपोनेंशियली ग्रो। तो दिस इज गोइंग टू बी a very strong industry, and primarily because
ना हम टारगेट ऑडियंस हमारा बहुत लोग सीजनल, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करोगे भी सीजनल बिजनेस होगा, अगर आप कोई प्री स्कूल इंडस्ट्री में जाओगे वो भी सीजनल बिजनेस होगा। ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है जो आप किंडरगार्टन से लेके 12th स्टैंडर्ड से लेके आप कॉलेज से लेके खुद पे 80% ऑफ द क्लाइंटेल जो है ना वो 30-35 के ऊपर है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि राकेश जी हमें इनको एक DMIT एट ए वेरी वेरी रीजनेबल कॉस्ट जाएगा कि आपका टैलेंट है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका क्या है, आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आपको कौन से सेगमेंट में डालना है, क्या आपको एजुकेशन में डालना है, क्या आपको DMIT में डालना है, क्या आपको F&B में डालना है, कहाँ पे है। आप कुछ कर सकते हो, यू कैन मेक ए डिफरेंस। दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक ए जो पैसा देता है, जो कहता है कि मनीष जी आप एक काम करो, ये लो 25 लाख रुपए आप ये पैसे रखो और आप मुझे बताओ कि आप कोको सेंटर चला के दो। दूसरा बोलता है कि भाई मुझे खुद करना है साथ में। तो आप पहले है ना ये दो सेगमेंट में आप समझ लो कि आपको जाना कहाँ है। और थर्ड सेगमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसे बनाता है, वो ऐसा बंदा है जो पैसा भी डालता है, इन्वेस्ट भी करता है और साथ में उसके और उसके फैमिली मेंबर्स को कोई ना किसी को इन्वॉल्व करता है। बिकॉज आप में से कोई ना कोई बंदे ऐसे होंगे जो आइदर सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे या सैलरीड होंगे या फ्रेशर होंगे एंड दे आर लुकिंग एट समथिंग। इन ऑल दिस 3 अपॉर्चुनिटीज यू शुड बी पुटिंग मनी समवेयर और द अदर एंड विल गिव यू अ ह्यूज बैकअप। यानी हमारे पास स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर्स, आपका एक डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा पीछे। तो ये पूरी जो इंडस्ट्री है ना, ये पूरा जो साइकोमेट्रिक इंडस्ट्री की जो काउंसलिंग की जो इंडस्ट्री है, कम से कम 4,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। करोड़ के जो लोग हैं उसमें से एज्ड 40% और बिलो द एज ग्रुप ऑफ 35, यानी आप 40 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं करियर काउंसलिंग की जरूरत आज नहीं तो कल रहेगी। और हर एक साल हिंदुस्तान ऐसा एक पॉपुलेशन है कि हर साल बंदा आते जाएगा। सो एक बार अगर आपका स्कूल या कॉलेज का टाइप हो गया देन ही विल बी देयर विद यू टुगेदर एंड एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम। तो सर देखो स्पेक्ट्रम सिंपल है। ए, आपको एक छोटा सा जगह चाहिए। बी, डिजिटल प्रेजेंस चाहिए। सी, ट्रेनिंग चाहिए। 4, मार्केट पेनिट्रेशन चाहिए। 5, छोटा जगह और पेनिट्रेशन तो हमें छोटा जगह और जो मैंने जो बताया कि क्या आपको साथ में जुड़ना है, क्या आपको पैसे डाल के करने हैं या आपको दोनों, ये 3 अगर आप ऑप्शंस आपको ध्यान में रहता है then you will be in a better position to go ahead. So I'll just show you a small Joshua ji, मैं आपको next करते जाऊंगा so you can show it. We have made a small presentation which will just show you कि how is the industry, how is the industry big. और ये 5 मिनट के स्लाइड के बाद मैं वापस आ जाऊंगा so I will just continue. Joshua, will you share the screen? Yes sir. Or should I do the इस दौरान क्या करो, आपकी जितनी क्वेरीज है ना लिख के रखो कि भाई मैं पैसे डालूंगा तो क्यों करूं, कहाँ करूं, कैसे करूं, पैसे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, क्या आएगा, और 9 सालों में आपने कितना पैसा कमाया है ना। एसोसिएशन के पहले आपको जितना भी सवाल पूछना है सब पूछ लो। Can you all see the screen? No, we can't. Well, I'll share the screen. Wait. आप लोगों को दिख रहा है? Yes sir. Joshua, can you see the screen? Yes. Yes sir. Yes sir.
होते वक्त मैं आपको और एक चीज बता देता हूँ. वी आर द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ सर्टिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलिंग. तो आज तक हमने कम से कम हमें 25 से 40 अवार्ड्स मिल चुके हैं, 25 से 30 अवार्ड्स मिल चुके हैं अबाउट दिस. आई थिंक जोशुआ वी हैव कवर्ड दिस. और हमारे पास यूएस का पेटेंट है, हमारे पास एनसीडीए का रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास तो जितने भी टॉप करियर काउंसलिंग के एसेट, ये हमेशा मैं पूछते रहता हूँ. आरओआई, टेक्नोलॉजी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया. अब यही चीज मैं आपको बता रहा था. एजुकेशन एज एन इंडस्ट्री आगे बढ़ता है. सेकंड, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. देखो आप कोई भी बिजनेस में हो, ट्रेनिंग, एजुकेशन, काउंसलिंग ऐसा एक बिजनेस है जहां पे बंदा पैसा भी देता है और सर भी कहता है और रेस्पेक्ट भी मिलता है. सो यू आर डेफिनेटली डूइंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी. लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, ये तो सबको पता है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है. अनलिमिटेड क्लाइंट डेटाबेस, क्यों? क्योंकि आप कोई भी राह चलता बंदा आपका क्लाइंट है. एक बच्चे का से लेके बड़े तक आप हर एक साल में सवाल अलग अलग होंगे और जवाब डीएमआईटी देगा. 2 साल के बच्चे का सवाल ये रहेगा कि मैं आगे जाके क्या करूं, मैं बच्चे को कहाँ पे डालूं, कौन से प्री स्कूल में डालूं, जैसे मेरा सवाल था. 6 या 7 साल में बंदे का सवाल ये रहेगा कि मैं आगे इसको कौन से काउंसलिंग में डालूं या उसको कौन से क्लासेस में करूं. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, अब वो बच्चा जब 8th, 9th, 10th में जाता है तब तो और शुरू हो जाती है परेशानी. मैथ्स लूं, साइंस लूं, क्या करूं. कॉलेज में फिर उसका करियर्स इंडस्ट्री क्या है. हमारे बैकएंड में वी हैव एनालाइज्ड 530 करियर्स. आपको पता है देयर आर क्लोज टू 580 करियर्स व्हिच हैज गॉट अ पेइंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 2 लाख रुपीस. हमारे पास 28 साइकोलॉजिस्ट है, वो सिट इन डे इन एंड डे आउट एंड ओनली डू दिस वर्क. ये थोड़े फ्रेंचाइजी के लोग हैं. अभी नंद कुमार जी हैं जो बेंगलोर में हैं 2016 से. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मार्केटिंग और ऑपरेशन हेड हुआ करते थे, यानी इनको साइकोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं था. ये हेमा महाजन है, ये बॉम्बे में है, काफी सालों से हमारे साथ में, ऑलमोस्ट अभी 8 साल हो चुके हैं. ये 2 बच्चों की माँ है एंड शी इज अ लॉ ग्रेजुएट. अगेन शी इज जस्ट डूइंग एमएससी साइकोलॉजी नाउ. उनका भी साइकोलॉजी हुआ नहीं. ये भुवनेश्वर में है, इनका क्या कहते हैं वो आरओ का बिजनेस था एंड नाउ ही हैज गॉन इनटू दिस क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज. आप कोई भी इंडस्ट्री में पैसा डालना चाहते हो, ये रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी को हमेशा ध्यान में रखना. इंडस्ट्री में आप मत जाइए जहां पे ऑलरेडी मार्केट प्लेयर्स हैं और जहां पे बहुत देयर आर ओनली 2 और 3 जो टॉप के हैं ना, सिर्फ उन्हीं कनेक्ट करना. क्योंकि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ये कहता है कि भाई नया मार्केट बनाओ, नया कंपटीशन को इररिलेवेंट करो, नई डिमांड को क्रिएट करो. ऑलरेडी जहां पे बिजनेस हो रहा है बहुत खराब हो गई और उसके बाद फिर उन्होंने डोमिनेशन कर दिए. कोई भी ट्रेडिंग वाले बिजनेस में मत जाओ, कोई भी ये आइसक्रीम पार्लर या F&B का सेक्टर में, ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो. प्रॉब्लम क्या है ना कि उसमें कोई आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है नहीं. आपने पैसे डाले, 5-10 लाख रुपए डाल दिए और वहां पे वो शेफ आ रहा है, वो नहीं है. ऐसा कुछ करो जहां पे आपका खुद का एक वर्चस्व बने या आपका खुद का एक अस्तित्व बने. अगर समझो जयपुर से एक भी बिजनेस करते हो, वहां पे जब आप चलोगे तो बच्चा ये नहीं बोलना चाहिए कि वो देखो आइसक्रीम वाले मामा आ गए, आइसक्रीम वाले मामा आ गए. ये बोलना चाहिए मम्मी देखो वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे को काउंसलिंग की थी. तो आप थोड़ा परसेप्शन वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करो. आप जो इंडस्ट्री में बिजनेस में जो पैसे डालने वाले हो, उसमें ये समझो कि आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो. ये देखो, ये आई थी 2019 में मार्च में. ये था कि एजुकेशन सेक्टर रिमेन्स अनअफेक्टेड, जो आज के तारीख में भी सेम है. सिर्फ स्कूल्स बंद है, एजुकेशन चालू है. कोई एजुकेशन बच्चे का स्टॉप नहीं होगा क्योंकि अगर माँ बाप को पैसे डालने हैं तो वो बच्चे. अब आप जब आओगे ना
आप लोग सर मैडम जो भी आएंगे तो आपको ऐसे बोर्ड में आपको फर्स्ट ईयर में आपका स्कूल्स कितने हैं, कॉलेजेस कितने हैं, मुझे पता नहीं कि वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे जोशा सर ने भेजा है। तो वो आपको एक पूरा डैशबोर्ड दिया जाएगा जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग से लेके आपके डैशबोर्ड से एक प्रोसेस। अभी देखो हैदराबाद में देयर आर क्लोज टू स्कूल्स, कॉलेज, 302 कोचिंग सेंटर। तो क्लाइंट डेटाबेस है ना, ये इतने ज्यादा है कि आपको लोग ज्यादा लगेंगे और बिजनेस कम पड़ जाएगा। अब देखो 3 टाइप की फ्रेंचाइजी है मोटा मोटा, एक यूनिट फ्रेंचाइजी, एक एरिया फ्रेंचाइजी और एक मास्टर फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी का यहाँ पे स्लाइड शायद मिस हो गया, बट एक यूनिट फ्रेंचाइजी है, एक एरिया फ्रेंचाइजी है और एक मास्टर फ्रेंचाइजी है। करना है, छोटे तरीके से शुरू करना है, छोटे कस्बे से शुरू करना है, उसको आप पहले ये देखना है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो हम ये 2.5 लाख रुपए का मॉडल सजेस्ट करते हैं। लेकिन मजा तो वो एरिया के राइट में समझो कल कि अगर आपने ले लिया समझो जगह है, एरिया राइट्स ले लेते हो तो आप उस आपके, और तीसरा है 25 लाख रुपए से ऊपर, वो है का राइट्स लेते हो। अभी अगर आप जयपुर का राइट्स लेते हो या जयपुर जोधपुर का कैटेगरी में चला जाता है, जहाँ पे आप आपके अंदर में एरिया फ्रेंचाइजी करते हो, आपके अंदर में यूनिट फ्रेंचाइजी करते हो और हर एक मॉडल के ऊपर आपका पैसा मिलता है। यानी ये जो C&F और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो मॉडल हमारे साथ में चलता है, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मॉडल है। 2.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए और 15 और 25 डिपेंडिंग कि कितना बड़ा एरिया है। और तीनों में देखो आज की तारीख में आप समझ लो, पहले के 6 महीना आप ये मान के चलो कि आपको सिर्फ मार्केट समझना है और हम आपको समझने की तो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, आपकी मार्केटिंग ट्रेनिंग, काउंसलिंग ट्रेनिंग, आपके डिजिटल मार्केटिंग। यानी आप जब 2 उतरोगे तब आपके पास एक पूरी कायनात होगी आपके आसपास। So we'll prepare you, and once you're connected, then it is only a matter of time. It moves ahead. आपका एज ग्रुप, आप कोई भी एज ग्रुप में पकड़ लो, वो एज ग्रुप आपका टारगेट ऑडियंस बन जाता है। दिस आर योर टारगेट ऑडियंस। ये देखो, ये थोड़ा ऊपर पीछे से थोड़ा डिजाइन, बुफे जी मेरे को बहुत पसंद है। ये क्या करते हैं, जब स्टॉक का कॉस्ट जब कम होता है ना, तब स्टॉक खरीद लेते हैं। तो उनका कहना है व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट बाय द हाउस। इसका ये कहना है कि भाई, जब मैं ये एग्जिट कर देता हूं ताकि हम सब एक दूसरे को और एक बार देख लें। तो ये कहते हैं कि भाई, जब मार्केट में बहुत मंदी चल रहा हो तब आप बिजनेस करना शुरू करो। आप लोग में बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहेगा कि हम पैसा क्यों डालें या कहाँ डालें, क्या ये सही समय होगा पैसा डालने का? आज से ज्यादा और आज से बड़ा सही समय कभी नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, वो हमेशा सबसे ज्यादा तब होती है जब मार्केट आराम होता है, जब मार्केट होता है। मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1930 में जब ये स्पेनिश फ्लू हुआ था या जब डिप्रेशन हुई थी, और 2008 में जब और एक बार डिप्रेशन हुआ था, ये दोनों समय में सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकले थे। हम भी उसी के प्रोडक्ट हैं। 2008 की डिप्रेशन, IT वाले जो सेक्टर हैं उस वक्त के। तो ऐसे वक्त में आपको पैसे डालना, आप आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो। और बिकॉज वंस द मार्केट ओपन्स अप, then there will be a lot of competition to take the opportunity in your own place. आप हमेशा सवाल ये करो कि ब्रेन वेंडर्स क्यों नहीं।
साथ में इन द सेंस 2011 में हमने ये बिजनेस शुरू की, तो ऑलमोस्ट अभी 10 साल होने जाएगा। वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन आवर इंडस्ट्री। हमने ऑलरेडी जो भी मेहनत करना था, जो भी खर्चा करना था, वो हम कर चुके हैं। हमें तो ऐसे लोग चाहिए कि हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ट्रेनिंग, हमारा प्लेटफॉर्म यूज करें और आप खुद आपके हिसाब करना शुरू करो। We will give you all the training possible in this particular world for to ensure that you are moving ahead. और मुझे तो लगता है मैंने ऑलमोस्ट राकेश जी, मैंने तो ऑलमोस्ट जितनी भी ज्ञान देनी थी स्पेक्ट्रम में दे दिया। अब Joshua, did I miss out anything? If I missed out anything, let me know. Okay, and sir. I would also once that we see everybody, so that मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि लोग सो नहीं रहे थे, या लोग लिख रहे थे, या लोग they were making a lot of difference. So Ashok ji, I think I have finished most of the aspect. Suresh Patil ji, Lukad ji तो पहले से काफी clear थे। राहुल जी शुक्रिया। Any questions about the industry spectrum? Any questions about the media spectrum? Any question? हाँ, media तो मैंने कहा नहीं। We are featured in almost what I think next time, Joshua, what we should do is we should put all the media interviews in place. We can also send them the video testimony of the lot of schools which has, you know, which has तो हमारे पास ऐसे कम से कम 100-150 स्कूल के प्रिंसिपल्स के वीडियो टेस्टिमनीज हैं जो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमने हमारे स्कूल में शुरू किया, आप तो करो ही। तो वो चीज भी हमारे पास है। Is there anything else which I missed out? No, sir. We have the video feedback whenever you are done. So, if the question answer can start, and if somebody can moderate. Yes, sir.